السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کشش یمین آنکھیں ملتا اٹھا، لیکن کشش کو وہاں نہ پایا تو اٹھ بیٹھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ پورا روم چیک کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ فریش ہوتا وہ باہر نکلا تو سامنے ہی وہ سب ایک ساتھ سر جوڑے نظر آئے۔ ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا ورنہ دیر ہو گئی تو ان کے ساتھ کچھ برا۔ داور پریشانی سے بولا، کس کو؟ کچھ ہو نہ جائے، کس کی بات کر رہے ہو؟ یامین نے پاس آتے سب کو چونکا دیا۔ بھائی سمیر یامین کے گلے لگا اور آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو سے بھر گئی۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ یامین کا دل دھڑکا۔ داور نے رات والی ساری بات یامین کے گوش گزار دی۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ اور میں کیسے ان سے لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ یامین کو خود پہ غصہ آیا اور موبائل پہ جلیل کو کال کی۔ سر جلیل بھی جیسے انتظار میں تھا کہ فوراً کال اٹھائی۔ جلیل، مجھے چھوٹے بابا چاہیے، ہر حال میں صحیح سلامت۔ جلیل کو ساری بات بتا کے آرڈر بھی جاری کیا۔ سربرست کو دیر ہی میں ان کا پتہ لگا کے بتاتا ہوں، ان کا فون نمبر سینڈ کر دے۔ جلیل نے پھرتی دکھائی۔ اب تم سب منہ کیوں لٹکا کے کھڑے ہو؟ یامین کو وہ سب چپ چپ سے اچھے نہ لگے۔ بابا کو کچھ؟ سمیر دھیرے سے بولا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، میں ہوں نا، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ یامین نے اسے حوصلہ دیا۔ سبھی کچھ حد تک مطمئن ہو گئے۔ اللہ بہتر کرے گا، فکر نہ کرو۔ اور تم؟ ان سے کہتے وہ کشش سے مخاطب ہوا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ روم میں آؤ کہتے وہ وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا تو وہ ان سب کو آتی ہوں کہہ کے یامین کے پیچھے چلی گئی۔ اس کے اندر آتے ہی یامین نے دروازہ لاک دیا۔ اس سے پوچھ کے صبح صبح آپ اٹھ کے باہر گئیں؟ یامین کو غصے میں دیکھ کشش تھوڑا گڑبڑائی۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ آئندہ میرے اٹھنے سے پہلے آپ روم کے اندر رہیں گی، سمجھی؟ آپ؟ یامین غصے میں تو تھا ہی، آج آپ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ کشش کو چنبا ہوا، اس میں کیا لاجک ہے؟ کشش کے ماتھے میں بال پڑے۔ کشش، اگر میں کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کرو۔ اب ہمارے بیچ رشتہ بدل چکا ہے اور سمجھو۔ اور کیا رشتہ بدلنے سے انسان بھی بدل جاتا ہے؟ کشش نے بات کاٹی جو یامین کو برا لگا۔ انسان بدلے یا نہ بدلے، اس کے جذبات بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں، ہر رشتے کی طرح اس رشتے کو بھی اہمیت دینی پڑتی ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی بے وقوف ہو کہ سب میں تمہیں سمجھاؤں۔ یامین نے اینڈ پہ اسے ڈانٹا تو وہ منہ بگاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو اور کیا کروں؟ بیوی ہو تم میری۔ میں چاہتا ہوں صبح اٹھوں تم میرے پاس ہو، مجھے پتا ہو کہ تم کہاں ہو، نہ کہ مجھے تمہیں ڈھونڈنا پڑے۔ پرواہ کرتا ہوں تمہاری اور چاہتا ہوں کہ تم بھی کرو۔ اس کے پاس ہوتا ہوں، وہ آپ کے بار دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولا۔ اسے بنا پلک جھپکے دیکھے گئی، ہر شوہر کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میری بیوی کے لیے میں فرسٹ پریارٹی ہوں، سب سے اوپر۔ وہ اسے صاف لفظوں میں سمجھانے لگا، آپ سے کہا تھا ابھی رخصتی نہ کرے، شاید میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی۔ کشش کی آنکھیں نم ہوئی۔ یامین نے اسے سخت دوری سے نوازا اور سر جھٹکتا باہر نکلنے لگا۔ کشش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کوشش کروں گی آپ کا شکایت، وہ دھیمے لہجے میں کہتی یامین کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ یامین نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں تم پر؟ اس کے قریب ہوتے پیار سے سمجھایا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نروٹھے پن سے بولی کشش۔ مجھے تم میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے، تم جیسی ہو ویسی رہو، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں۔ یامین نے گہرا سانس لیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کس طرح اس پاگل لڑکی کو اپنی فیلنگ سمجھائے۔ خیر چھوڑو، اداس مت ہو، شاید میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا ہوں۔ یامین نے اپنی ہی غلطی مانی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، کشش نے مسکراتے کہا۔ ریئلی؟ یامین کو اس کی بات پہ خوشگوار حیرت ہوئی۔ کشش، میری پوزیسنس ابھی تم نے دیکھی کہاں؟ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ بری طرح سٹ پٹائی۔ آپ کو جانا نہیں؟ کشش نے آنکھیں چمکاتے پوچھا۔ اسی وقت موبائل پہ جلیل کی کال آتے دیکھتے وہ اسے ریسیو کرتا ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، یامین کے لہجے میں پریشانی۔ مجھے بھی جانا ہوگا۔ اپنا موبائل اور والٹ اٹھاتے اجرت میں وہ باہر نکلا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں بھی آپ کے ساتھ، کشش میں جلدی آ جاؤں گا۔ اور ہاں، علیزے پہ کڑی نظر رکھنا، اس بار میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ
यामीन सख्त लहजे में बिना बात मुकम्मल किए बाहर निकलता चला गया। कशिश ने उसकी सलामती और कामयाबी की दुआ की। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना है। हाज़क ने अनायशा को देखते प्यार से कहा। वो जो दानी और हानी के साथ महवे गुफ्तगू थी। हाज़क के गुनगुना के कहने पे सटपटा के उसे देखा और आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। हमें लफ्ज़ों की बात समझ आती है, इशारों की नहीं। वो उस मासूमियत से और प्यार भरी नजरें अनायशा पर टिकाते वो अच्छा हंसा जिच कर गया। आज उसने ऑफिस से छुट्टी की थी। इन तीनों के साथ मिलकर आज घूमने का प्लान बनाया था। दानी और हानी दोनों ने हुटिंग की तो अनायशा ने वहां से उठ के जाना ही मुनासिब समझा। क्या भाई, आपने आप ही को भगा ही दिया? हानी ने मुंह बनाया। यार मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही भाग गई। हाज़क ने हाथ खड़े किए। चलो तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं आपकी आपी जान को मना के लाता हूँ, हाज़क ने उन्हें कहा और खुद उठता अनायशा के पीछे रूम में आया। मोबाइल के साथ लगी थी। हाज़क के पास आती मोबाइल ले लिया। अनायशा को इसका यूं मोबाइल लेना बुरा लगा। क्या हाज़क, आप भी ना? मुंह बनाया। क्या हुआ, कोई खास बात कर रही थी किसी से? हाज़क को भी उसका अंदाज कुछ भाया रहा। क्या कहना किसी से? कशिश का मैसेज आया था, हाल वगैरह पूछ रही थी और अनायशा ने जानबूझ के बात दूरी छोड़ दी। और क्या? हाज़क मुतजस्सस हुआ। और ये कि आप यामीन सर के साथ हैं या नहीं, यही पूछ रही थी अनायशा ने उठते हुए कहा। यामीन मतलब यामीन घर नहीं? हाज़क यामीन के लिए बेचैन हुआ और उसे कॉल करने लगी। अनायशा ने मोबाइल ले लिया। हाज़क ने हैरानी से उसे देखा। ऐसे ना देखें, आज आप छुट्टी पे हैं और आपका सारा दिन मेरे साथ गुजारने का प्लान है, अनायशा ने हाथ जताया। आई नो अनायशा, लेकिन यामीन से तो बात तो करने दो, वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। हाज़क ने हाथ आगे बढ़ाया। नो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अभी जा रहे हैं और आपका आज कोई और काम नहीं सिवाय हमें टाइम देने की, अनायशा कहते उसके करीब हुई और बहुत मीठी नजरों से देखते शीरी अंदाज में कहा। हाज़क के चेहरे पे भी स्माइल आ गई और हाथ बढ़ा के उसे अपनी बाहों में भरा। आप इतना मजबूर कर रही हैं तो बंदा हाजिर हिदमत है, सरे तस्लीम हम किया। चले फिर। अनायशा की आंखें चमकी तो हाज़क ने इस बात में सर हिलाया। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ट्राले के नीचे एक आदमी आ गया था और शक था कि वो मीर फैमिली में से कोई ना हो। यामीन दिल थाम के वहां पहुंचा। लाश का चेहरा मिस हो गया था, पहचानने के काबिल तक ना थी। यामीन का दिल डर गया कि वो अजीज साहब हो सकते हैं। ये नहीं अजीज अंकल, इंस्पेक्टर को लड़खड़ाते लहजे में कहा। हो सकता है लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, देखते हैं, इंस्पेक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। इस लाश के पास कुछ ऐसा भी बरामद ना हुआ था कि यकीन से कहा जा सकता कि वो अजीज साहब है। यामीन ने जलील को कॉल मिलाई लेकिन वो उठा नहीं रहा था। यामीन हैरान था, उसे यहाँ का कहकर वो खुद क्यों नहीं आया। मेरे हाथ खोलो, अलीज़े ने दांत पीसते कहा। कशिश ने घूरी से नवाजा। मुझे वॉशरूम जाना है, गहरा सांस करते अलीज़े ने अपनी मुश्किल बयान की। रोक नहीं सकती, कशिश ने बरजस्ता कहा। किरण ने इसे ठोका मारा, कहा इसे जाने दो ना, ये वहां से रफू चक्कर हो गई तो। कशिश को इस पे एतबार ना था। यार मुझे जाने दो, आई कांट कंट्रोल, अलीज़े ने मुंह बनाते कहा। प्लीज कशिश इसे भेज दो, नहीं तो, किरण ने डराया। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, शहजादियों की तरह कहते कशिश ने उसके हाथ खोले और वो फौरन इन दोनों को घूरती वाशरूम घुसी। जबकि कशिश ने घड़ी पर टाइम देखा। इतने में समीर की कॉल आई। वो अल्ताज होटल जा रहा है, दादाजी ने कुछ फाइल्स मंगवाई हैं। और कशिश वही सुनने लगी। अलीज़े बाहर आई तो किरण को अपना मुंतजिर पाया। पास पड़ा वास जोर से किरण के सर पे मारा तो उसकी चीख बुलंद। कशिश वापस पलटी। इतने में अलीज़े ने उसे पीछे से धक्का दिया। वो खुद बाहर की तरफ भागी। कशिश ने खुद को संभाला लेकिन अलीज़े के पीछे जाने की बजाय उसने किरण की तरफ बढ़ी। उसके सर से खून का फवारा फूटा था। अलीज़े बहुत आराम से छुपती छुपाती गेट तक आई। बहुत आराम से वो गेट कीपर के पीछे से सर पे वार करती उसे बेहोश कर चुकी थी। अब वो मजे से खड़ी मुड़ती एक नफरत भरी नजर मीरवेला पे डाली। यामीन सिकंदर मीरवेला की सिक्योरिटी हूँ, माई फुट, नफरत से कि वो कहती। गेट से बाहर निकलती चली गई। किरण आंखें खोलो, छोटी मामा, सवेरा मामा प्लीज, कोई जल्दी आओ, कशिश ने रोते हुए पुकारा और किरण को संभालने लगी और नीचे गिरती बेहोश हो चुकी थी। दावर जो वहीं आ रहा था कशिश की आवाज सुनता फौरन भागा। अंदर आते किरण को जख्मी हालत में देखता उसका दिल हिल गया। क्या हुआ? वो भी किरण को देखता कुछ बोल नहीं पाया। दावर जल्दी करो हॉस्पिटल, कशिश ने रोते हुए कहा। दावर दिल संभालता किरण को उठाए बाहर भागा। कशिश भी उसके पीछे भागी।
जलील को मुसलसल कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। इतने में यामीन के मोबाइल पे असफंद की कॉल आई। सर वो मीर विला से भाग गई। असफंद ने गाड़ी में बैठते अलीजे को मीर विला से निकलते देखा तो यामीन को कॉल की। डैम, असफंद इसका पीछा करो। आई होप कि उसने किसी को नुकसान ना पहुंचाया। यामीन ने फौरन कहा और खुद गाड़ी में बैठता गाड़ी घर की जानिब मोड़ चुका। वो घूम फिर के उस वक्त ताज होटल पहुंच चुके थे। सर मेन्यू। वेटर मुस्कुराता हाजक के पास आया। इन्हें दो, जो ये पसंद करे। हाजक ने अनायशा की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखते कहा। वो तीनों मिलके ऑर्डर करने लगे कि तभी हाजक को समीर दिखाई दिया। एक्सक्यूज मी। हाजक उठता उसके पास पहुंचा। वो जो उजलत में जा रहा था हाजक को देखता रुका। क्या हुआ, सब ठीक है ना समीर? सलाम दुआ के बाद हाजक ने उलझते हुए उसे देखते पूछा। समीर का दिल क्या इसे सब बता दे, लेकिन यामीन ने मना किया था। आज शादी के बाद पहली दफ़ा वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ऐसे में यामीन ने मना किया था कि इसे कुछ ना बताया जाए। हाँ भाई साहब ठीक है, ये फाइल लेने आया था, दादाजी ने मंगवाई है। समीर ने तफसील दी। यामीन कहाँ है? हाजक ने समीर को जाने के लिए पर तोलते देखा तो पूछ बैठा। जी वो मालूम नहीं। समीर झूठ बोलते नजरें चुरा गया। हाजक ने उसे ऐसा करते भांप लिया। इसी असना में समीर के नंबर पे दावर की कॉल आई। क्या, कौन से हॉस्पिटल? समीर सख्त परेशान हुआ। मैं अभी आया। कॉल बंद करते वो बाहर निकलने लगा। क्या हुआ समीर, कौन है हॉस्पिटल में? हाजक ने उसे हाथ पकड़ के रोक लिया। भाई वो किरण, वो जख्मी एलिजे भाग गई है। समीर ने जब्त करते कहा। इतनी देर में अनायशा की नजर भी समीर पे पड़ी, जबकि हानि का अखियों से उसे वाच कर रही थी। रुको, मैं अभी साथ चलता हूँ। हाजक ने उसे रोका। नहीं भाई आज नहीं, आप फैमिली। समीर ने मना करना चाहा। समीर तुम सब भी तो मेरी फैमिली हो, समझे? जस्ट वेट, मैं अभी आया। उसे प्यार से लपटते वो अनायशा की जाना पड़ा। आप सब लंच के बाद घर चले जाना, मुझे जरूरी काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। उन्हें उजलत में कहता वो वापस मुड़ा। इट्स नॉट फेयर, अनायशा ने दुख से उसे देखते कहा। हाजक मुड़ के एक शिकवा करा नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गया। समीर को लिए वो हॉस्पिटल की जानब गाड़ी में बैठता मोड़ चुका था। कैसी है अब किरण? समीर ने दावर को देखते ही पूछ लिया। डॉक्टर देख रहे हैं। दावर इस बात करना ही मुश्किल हो रहा था। कशिश भी पास ही थी। आते समय सिर्फ सवेरा बेगम को ही पता चल सका और कशिश दोनों किरण को हॉस्पिटल लाए थे। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हाजक ने तसल्ली दी। कैसे हुआ ये सब? समीर ने कशिश को देखते कहा। कशिश ने मुख्तरन समीर को बताया। हद हो गई यार, इतनी लापरवाही जानते बूझते। समीर को कशिश की लापरवाही पे गुस्सा आया। वो भी हैरत से उसे देखने लगी। ठीक हो जाएगी वो। दावर ने समीर के कंधे पे थपकी दी। लेकिन इसे चोट तो लगी ना, क्या जरूरत थी इसे खोलने की? इतनी हमदर्दी की क्या जरूरत थी भाई? समीर को जब्त करना मुश्किल लग रहा था। दावर ने एक नजर कशिश को देखा, जिसके चेहरे पे वाजे दुख रकम था। वो खामोशी से बाहर की जानिब बढ़ गई। अभी यामीन रास्ते में ही था कि असफंद का मैसेज आया। उसने लोकेशन सेंड की थी, वहां पहुंचने को कहा था। कुछ ही देर में वो मतलूबा जगह पहुंच चुका था। क्या हुआ, किधर है वो? यामीन ने सामने ही असफंद की गाड़ी को देखते मोबाइल पे कॉल करते पूछा। सर वो इस सामने वाली बिल्डिंग में दाखिल हुई है। यामीन ने बिल्डिंग पे नजर दौड़ाई। ये तो काफी बड़ी है, कहाँ ढूंढे इसे? यामीन के माथे पे बाल पड़े, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से ना था। दोनों ही आगे एहतियात से बिल्डिंग में दाखिल हुए। फ्लैट के अंदर आते ही एलिजे ने सबसे पहले शावर लिया, कपड़े चेंज किए और आगे की प्लानिंग करने लगी। अब इस जगह जाना था जहां उसने अजीज साहब को कैद कर रखा था। यामीन और असफंद उसका बाहर ही वेट कर रहे थे। कुछ देर में बाहर आती दिखाई दी, बहुत फ्रेश कुलिये में। यामीन थोड़ा ठिठका। ये कहाँ जा रही है? असफंद ने उसे गाड़ी में बैठते देख कर कहा। गाड़ी उसके पीछे लो, यामीन ने फौरन कहा। और कुछ ही देर में एलिजे का पीछा करते हुए एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। कहाँ है वो? एलिजे की करख्त आवाज सुनाई दी। अजीज साहब को बहुत बुरी हालत में वहां बांधा हुआ था। यामीन का दिल किया कि इन्हें आजाद करा ले, लेकिन उसे सब्र से काम लेना था। गुड, इन्हें लगा एलिजे को पकड़ लिया। यामीन सिकंदर, एलिजे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कह लगाती खुश होती, जबकि यामीन मुठियां भींचता रह गया। असफंद को पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहा और खुद चुपके चुपके अंदर की जानिब मूव ऑन करने लगा। वहाँ तकरीबन 4 से 5 लोग थे। इन सब के पास असला था। यामीन कोई भी कोताही करके रिस्क नहीं ले सकता था, जबकि अजीज साहब उसके कब्जे में थे। किरण अब ठीक थी, इसे सर पे चोट लगी थी। घर से आलिया का फोन आया था, उन्हें भी मुतमईन कर दिया था। समीर तुम घर जाओ, दादाजी को इन पेपर्स की जरूरत होगी, वो वेट कर रहे होंगे।
जहाँ मैं हूँ देख लूँगा, दावर ने समीर को कहा। समीर को किरण की फिक्र सताई। यार मत घबराओ, वो ठीक है। हाजक ने भी उसे तसल्ली कराई तो उस बात पे सर हिलाता बाहर आया। एक तरफ उसे कशिश बैठी दिखाई दी। समीर का जी चाहा कि उससे जाके बात करे, लेकिन फिलहाल दादाजी के पास जाना ज्यादा जरूरी था। वो इसे इग्नोर करता आगे बढ़ा। कशिश की समीर की पीठ पे नजर पड़ी तो उसका यूं चले जाना उससे ज्यादा दुख दे गया था। खामोश आंसू फिर से बह निकले। दादाजी ने जमीनों के पेपर्स मंगवाए थे। अजीज साहब को किडनैप किया गया था और उनको छुड़ाने के लिए उनके पास 50 करोड़ रुपए मांगे थे। वो अपनी ज़मीनें बेच रहे थे। उन्होंने वकील को भी बुलवा लिया था। वो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे बिना किसी को बताए। ज़मीनों को पेपर्स जामीन के लॉकर में थे जो इसके पर्सनल कैबिन में था। इसकी डुप्लीकेट चार्ट भी दादाजी के पास भी थी। वकील से सारी बात हो गई थी। इस सब में बहू आलिया भी इनके साथ थी। खबरदार, खुद को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। अलीजे जो दादाजी को कॉल कर रही थी पुलिस के आने से सख्त घबरा गई। इसके आदमी पकड़े जा चुके थे और अब वो कानून की गिरफ्त में थी। जामीन ने अजीज साहब को असफंद की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। अलीजे का चैप्टर बाद में क्लोज करने का सोचता अजीज साहब को लिए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां किरण आईसीयू में थी। वहीं कशिश देख वो उसकी जानिब बढ़ी। कशिश जामीन के पुकारने पे वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रही थी। फौरन उसकी जानिब पलटी। उसे नम आंखों से देखते हुए उसके सीने से जा लगी और रो दी। जामीन ने उसकी ये हालत देखी तो परेशान हुआ। सब ठीक है ना कशिश? उसका दिल भी अब किसी अनहोनी के लिए मजीद तैयार ना था। कशिश ने नहीं में सर हिलाया। वो किरण वहाँ अलीजे ने मैंने नहीं किया कुछ भी। रोते हुए वो अपनी सफाई दे रही थी और यही बात जामीन को खटक रही थी। वो रुलाने वालों में से थी, रोने वालों में से नहीं। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा किरण को। जामीन ने उसे तसल्ली दी तो उसे लगा जैसे उसका अपना उसे मिल गया हो बिना कुछ भी पूछे। वो उस पर कितना एतबार करता था। वाकई वो इश्क बेहिसाब करता था। कशिश ने अपने आंसू साफ किए। जामीन कशिश को लिए अंदर की जाने बढ़ा, जहाँ हाजक और दावर भी मौजूद थे।